Hello everyone, this is Deepa. Students, today we are going to start our new chapter, third chapter of geography, that is mineral and resources. Chapter start from a discussion between Kiri and Sushant. Kiri asked, "What are minerals?" And Shukant replied, "Have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you can't see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust." मीन्स एक डिस्कशन चल रहा है किरी और सुकांत के बीच में, जिसमें किरी पूछती है कि खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या हैं, तो वो बताता है कि कभी तुमने बिस्किट बनाते हुए देखा है। बिस्किट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि आटा, दूध, चीनी। तो इन इंग्रेडिएंट्स को हम सेपरेटली नहीं देख सकते। जब बनने के बाद हम बिस्किट को देखते हैं तो हम उसको इंग्रेडिएंट को सेपरेट नहीं देख सकते। तो बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही क्या है, जो हमारी अर्थ है उसमें रॉक जो हैं उसमें मिनरल्स मिक्स्ड हैं। सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन दैम, और दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये क्या है, खनिज पूरी पृथ्वी की चट्टान की जो सरफेस है उस पर सभी जगह फैले हुए हैं। सो let's see what are the definition of minerals. A natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. They are created by natural process without any human interference. मीन्स जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं वो उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, यानी कि एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है जो कि नेचुरली मिल रहा है हमको, उसको हम खनिज बोलते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि कोई किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They can be identified on the basis of their physical properties and chemical properties. Whenever we'll talk about physical properties, we'll discuss about color, density, hardness, and when we'll talk about chemical properties, it means it refers to solubility. यानी कि कुछ जो इनके क्या है भौतिक गुण हैं, जैसे कि कलर होता है, हार्डनेस होती है, और कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है यानी कि रासायनिक गुण हैं जिनसे इनको हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। और खनिज है जो वो विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिवेश यानी कि जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है उसका अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वेरिंग कंडीशन में डेवलप होते हैं। सो लेट्स सी types of minerals. There are over 3000 different minerals. On the basis of the composition, minerals are classified mainly as metallic mineral and non-metallic mineral. Whenever we'll talk about metallic mineral, we'll find that metallic mineral further classify into two categories, ferrous and non-ferrous. So let's see what is the definition of metallic mineral and what are metallic minerals. Metallic minerals contain metal in a raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Metallic minerals may be ferrous and non-ferrous. मीन्स जो ये धात्विक खनिज होते हैं ये कैसे कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं, रॉ फॉर्म में मिलते हैं हमको, और जो मिनरल है ये हार्ड सब्सटेंस है एक तरीके से, जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें कि चमक की विशेषता होती है, थोड़ा लस्टर होता है, शाइन भी अवेलेबल होता है। और मेटलिक मिनरल्स को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे फेरस एंड नॉन फेरस, मीन्स खनिज लौह और अथवा अलौह, खनिज को लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। सो
Now we'll discuss about metallic mineral may be ferrous or non-ferrous. So what are ferrous minerals? Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromides contain iron. जिनके अंदर क्या है, आयरन पाया जाता है, वो कैसे हैं, फेरस हैं. फेरस मीन्स ही होता है आयरन. एफ ई हम लोग बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं, एफ ई मीन्स फेरस आयरन. And a non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead. इसमें अलौह जो खनिज है उसमें लोहा नहीं होता है, और जो लौह खनिज है उसमें लोहा अवेलेबल होता है. और जिसमें लोहा नहीं होता है तो इट मीन्स कि कुछ अलग मेटल्स होंगे, जैसे कि हम गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की बात कर सकते हैं, सोना, चांदी और शीशा, तांबा. Now further we'll see what are non-metallic minerals. So non-metallic minerals do not contain metal, जिनके अंदर metal available नहीं होता है. For example, limestone, mica, gypsum are the examples. Minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic मिनरल्स. यानी जो अधात्विक खनिज होते हैं उसमें धातु नहीं पाई जाती. अब धातु नहीं पाई जाती तो क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और खनिज जो ये हमारा मिनरल है, इसमें मिनरल फ्यूल्स भी हम इंक्लूड करते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर द नॉन मेटेलिक मिनरल. दे आर कंसिडर्ड इनटू नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नाउ विल सी how minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. So these are the methods of extraction of minerals. How we can extract minerals? We can extract minerals from mining, drilling and quarrying also. Whenever we'll talk about mining, it will be further classified into two categories. First is open cast mining and second one is shaft mining. Further we'll discuss about the all types of mining and how we can extract minerals. This is very important part. So what is mining? Students, here you can see the diagram of mining, how people are taking out minerals from the rocks. So mining is the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. जो हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी हुई शैल होती हैं, यानी कि जो रॉक्स होती हैं, उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम माइनिंग बोलते हैं. इन हिंदी वी कैन कॉल इट खनन. And what is drilling? Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. जब हम क्या करते हैं, खनिज जो कि कम गहराई में स्थित होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जो कि हमारे, जब हम डीप वेल करते हैं तो यानी कि जो बहुत अंदर तक है हमारे, जिसके लिए हमें बहुत डीप बोर करना पड़ता है. बोरिंग हमने सुना होगा, जब हम हैंडपम्प्स वाटर निकालने के लिए हैंडपम्प यूज़ करते हैं, जब बोर किया जाता है तो बहुत नीचे तक बोर किया जाता है. तो डीप वेल आर बोर टू टेक देम आउट. दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग. जब बहुत ज़्यादा डीप वेल हमें बोरिंग करनी पड़े बहुत गहराई में, तो उसको बोलते हैं हम drilling. And quarrying is when minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. जब मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमारी ऊपरी सतह होती है उसके पास में ही मिल जाते हैं और हमको बहुत कम खुदाई करनी पड़ती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको क्वेरिंग के प्रोसेस से हमारी वो बाहर निकल कर आ जाती है. Now we'll discuss about uses of mineral. Minerals like copper is used in electrical equipments. Minerals are used for gems, jewelries, copper for coins and pipes also. Used in constructing building, developing weapons for defense, machinery, making jewelry, synthesizing fertilizers, salt in your food, graphite in your pencil are also minerals.
So this is very important. This can be asked in the 5 marks question, students, so please focus on that. लिसन इट प्रॉपरली. मिनरल्स को हम किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे कि कॉपर को हम यूज़ करते हैं वायर के लिए. मिनरल्स को हम जेम्स, ज्वेलरी बनाने में भी यूज़ करते हैं, और कॉइन्स और पाइप्स बनाने में भी कॉपर को हम यूज़ करते हैं, और बिल्डिंग्स बनाने में, और वेपन जो हम डेवलप करते हैं डिफेंस पर्पस से, और मशीन्स बनाने में, और ज्वेलरी और फर्टिलाइज़र को सिंथेसाइज करने में, और जो हम सॉल्ट भी अपने खाने में खा रहे हैं वो भी अपने आप में मिनरल है, और जो हमारी पेंसिल में ग्रेफाइट है वो भी मिनरल है. सो मिनरल इज़ वेरी यूजफुल फॉर आस. और वी ऑल नो दैट ये जो मिनरल्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, और कई इनके मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जाता है, कई तो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, और एल्यूमिनियम जिसमें कि बॉक्साइट से जो हमको मिलता है, और उसमें ऑटोमोबाइल्स में, और एरोप्लेन्स में, और जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं? मिनरल्स को यूटिलाइज करते हैं. सो next we'll discuss about how we can conserve minerals. As we all know that whatever the things which is very important for us, we are using that things should be conserved. Over utilization should not be done. So minerals are non-renewable resources. It takes thousands of the years for the formation. It is necessary to reduce wastage, and recycling of metals is another way in which mineral resources can be conserved. Students, we have learnt about 3 R's, that is reuse, reduce and recycle. So we have to think upon that and act seriously. जो मिनरल्स हैं हमारे, ये कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं. ये बहुत जल्दी हमारे कहते हैं हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं इनको. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन. सो एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल, ये जो डेवलप होते हैं जिस जगह पे, बहुत लंबा समय लगता है. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स. जिस स्पीड से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं उस स्पीड से ये डेवलप नहीं होते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. ये जो हम माइनिंग के थ्रू इसको वेस्ट कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए. इस वेस्टेज को हमको रिड्यूस करना चाहिए. एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. हम रिसाइकलिंग के थ्रू मेटल्स को कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज को हम लोग बचा सकते हैं. ओवर यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए. In this context, we have learnt about the concept of sustainable development, in which 3 things are there. We should proper use resources. We should leave the things for forthcoming generation. We should not overutilize any resource, and we should not harm environment. Now further we'll discuss about the power resources, that is conventional and non-conventional resources. So thank you very much for the patience hearing. Thank you very much. This is presentation by Deepa Yadav. Thank you.